So today we'll discuss about the next intermediate. That intermediate is called as a free radical. So one of the important intermediate from the carbon family, because most of the cases the intermediates radicals are on generally on carbon. There are also other species are there in which radicals are there, but in organic chemistry, what the radicals are there now on particularly on carbon. So you know that radicals are generated by the homolysis of what weaker sigma bonds. Okay, so example is given. So suppose I have a compound in which weaker sigma bond is there now. Example, this is A and B. This is an organic molecule in which have the covalent bond is there. Suppose example AB is a covalent bond. Okay, and when I treated that compound with initiator or any what a light source, results in the formation of what two different radicals like this fashion. Okay, A radical and B radical. So such a type of what cleavage is called as such type of the cleavage is called as the homolysis now. Okay, and you know the homolysis is nothing but the equal distribution of the electrons from the covalent bond. So that AB is a type of a molecule in which a weaker sigma bond is there now. So how these radicals are generated? By the homolysis of by the homolysis of weaker a weaker sigma bond. Okay, and you know that homolysis is due to, so what is the reason for homolysis now? How this homolysis is occurred? The homolysis is affected or homolysis is due to by the warm condition. First of all, what the warm is, either we can call photochemical condition, either we have thermal condition, high temperature one can call, okay, or any redox process, okay, like electron transfer and etc. So or by using some chemical reagents. Okay, so this homolysis process or the free radical generation process is generated by uh, some chemicals are responsible for the generation of radicals. Example, the peroxide in warm condition, peroxide in warm condition, can also use the isobutyronitride, that is called as a AIBN. Okay, so these are the common methods from which we can Yes. use these chemicals are generally used, okay, for the generation of what the radicals. Example, peroxide in a warm condition. अब peroxide मतलब कौन ले सकते हैं? You can take the benzoyl peroxide. You can take benzoyl peroxide. Example, I will give the example: PHCOO, OCO, and pH. Okay, we'll take the structures on the next page. So generally what happened here, by applying that or by apply the temperature or thermal condition onto this chemical, they have a weaker bond, oxygen-oxygen bond is there. They can easily break and it will form a two different radicals or two radicals is obtained. Okay, similar thing is for isobutyronitride, that is called AIBN. That AIBN also have the uh, if you treated that compound particularly with light, okay, so it will break easily homolytically and form a radical. That radical is that radical is very reactive. Okay, and it can capture with the simple your organic molecules now. So look at the chemistry of peroxide. What is peroxide now? A benzoyl peroxide. This is COO, this is O, C double bond O, and this is my benzene. This is called benzoyl peroxide. And benzoyl peroxide on treatment with the temperature, that is simple the warm condition. So what happen now? This bond will be broken and this linkage is called as a per linkage, which is one of the weaker bond. Okay, this linkage is called as a per linkage and it is one of the weaker bond. So it break easily homolytically. If it is break like this fashion, what happens? So there is a formation of what? Two different two radicals now. This one, you get these two radicals. Further, that molecule is also be arranged like this fashion. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं with loss of CO2 molecule ना.
Look at this one. You can also have this chemistry. That means you get the benzyl oxide, benzyl radical, or you get the phenyl radical. These are the two possible from the benzoyl peroxide. So this is the chemical which is responsible for the generation of radicals. And these radicals are not much more reactive, but they can easily react with the organic molecules. That's why any free radical reaction must be started from initiated method. That's why these chemicals are called the initiator. Now, second example is isobutyronitride. So this is my isobutyronitride group, and this is my azo group. Okay, this is called as a isobutyronitride. When this compound is going to be treated with the light condition, what happen now? It also have that same bond, okay, that undergo the homolysis. So look at this one now. So this bond will be cleaved like photochemically, and it form a 4 different radicals. It form a what? 4 radicals. How these radicals are going to be takes place here? Look at this. This is one, and here you can make a bond. Okay, this one. And if we make it simplified, so you will get this radical as a twice plus N2 is a byproduct. Now this radical, that is carbon with 2 methyl group and 1 cyanide, which is generated from what AIBN, is unreactive. Generally it is not much more reactive, but this is what capable, or this is what the it has that ability to react with any organic molecule, and it take the weakly, or it react with the weakly sigma bond now. मतलब ये जो हमने बनाया है, this is what the radical which is generated from AIBN, it is going to react with your organic molecule. किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ये हो रहा है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो भी वीकर सिग्मा बॉन्ड रहेगा, वीकर सिग्मा बॉन्ड, सो दैट बॉन्ड विल गोइंग टू अंडरगो द होमोलिसिस, और वहां से क्या करता है, वहां से जनरली हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. सो दैट मॉलिक्यूल इज फॉर द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H रेडिकल, और फिर जो भी आपको कार्बन के साथ बन रहा है वो बनेगा कार्बन का रेडिकल. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वन, कैन से द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ रेडिकल. ठीक है, अब यहाँ पे हम Yes. जो है वो ये भी यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द AIBN. यहाँ बताया ना आपको कि आपने AIBN जो लिया है, AIBN के साथ में क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन विद द AIBN नाउ, सो वी हैव NBU3 SNH, और इस कंपाउंड का नाम है ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन नाउ. तो ये जो बना है हमारा रेडिकल, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे रिएक्ट होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे रिएक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद द वीकर सिग्मा बॉन्ड, और उसके कॉम्बिनेशन में हम क्या यूज करते हैं, ये NBU3 SNH यूज करते हैं. इसकी अपन केमिस्ट्री पढ़ने वाले कि कैसे रिएक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, सो अभी जैसे ये मैंने लिखा है आपको यहाँ पे, अभी रेडिकल बनने के बाद क्या हो रहा है ना, लुक एट दिस वन. सपोज अगर मेरे पास ये वाला रेडिकल प्रेजेंट है, ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, इस रेडिकल को रिएक्ट करूँ. ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जो हमने बनाया ना रेडिकल, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट ये कैसे रिएक्टिव होगा, लुक एट दिस वन. सो BU3 SNH, इट इज ऑर्गेनोटीन कंपाउंड. अगर हम जब ऑर्गेनोटीन कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दिस कंपाउंड इज अ प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्टर. ओके, सो और ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कहाँ से करेगा, ये वाला. सो इफ इट अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, इट फॉर्म ए न्यूट्रल प्रोडक्ट, ये वाला, और हमको जो मेन कंपाउंड है वो ये मिल रहा है NBU3SN, एंड दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव रेडिकल. और ये किसी भी ऑर्गेनिक के साथ जो है वो आसानी से रिएक्ट हो सकता है. तो इसीलिए जब भी आपको AIBN दिखेगा ना, तो आपको ये 3 केमिकल्स आपको साथ में दिखेंगे. कौन कौन से दिखेंगे साथ में? फर्स्ट ऑफ ऑल AIBN, उसके साथ में कौन रहेगा, HNO, और फिर रहेगा आपका NBU3SN. ये तीनों केमिकल आपके साथ में ही होते हैं. 3 कंडीशन आपके पास जरूरी है, और ये जाके किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे रिएक्ट किया जाता है. ठीक है, Yes, sir. Got it. अब यहाँ पे भी जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, जैसे बताया वार्म कंडीशन चाहिए हमको, बट वार्म मतलब कितना, तो जनरली इसके लिए जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नियर अबाउट इसके लिए लगता है, या फिर आप डायरेक्टली फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं. तो इसमें भी एक 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपको बेंजोइल रेडिकल मिलेंगे C6H5COO रेडिकल, या तो फिर आपको मिल सकता है कौन सा,
इट अब ये CO2 कैसे निकला होगा, CO2 कैसे निकला, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया फोटोलिटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडिकल मिला होगा, यहाँ पर ये और ये एक रेडिकल और ये एक रेडिकल दोनों मिल गए, तो CO2 मिल गया। तो यानी कि आप इसका आगे भी जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यू गेट द 2 फिनिल रेडिकल एंड 1 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ऐसे। उसके बाद ये वाला इनिशिएटर आइसो आइसोब्यूटारोनाइट्राइल, दिस इज व्हाट AIBN। तो AIBN का काम क्या है, HNO के साथ वो इनिशिएट होता है पहले, और वो आपका रिएक्ट होता है किसके साथ में, Bu3SNH के साथ, और फिर Bu3SN आपका बनेगा रिएक्टिव कंपाउंड और वो आगे जाएगा। एग्जाम्पल, इस Bu3SN का काम जो है ना, ये हेलोजन को निकालने के लिए होता है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन, ठीक है। सो अब ये सब जो हो रहा है आपका किस लिए होता है, लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ दैट Bu3SNH एंड ऑल दिस थिंग। लुक एट दिस वन, सपोज अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मुझे ये वाला बनाना है, one of the great transformation ever now, conversion of alkyl halide toward the hydrocarbon। किसमें कन्वर्शन हो गया उसका, अल्किल हाइलाइड टू हाइड्रोकार्बन। अब ये अल्किल हाइलाइड टू हाइड्रोकार्बन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं। सबसे पहले AIBN, कंडीशन है उसके साथ में HNO, और उसके बाद है आपका NBu3SNH। ऑर्गेनोटीन जो है, जो नीचे लिखा हुआ है, ये ऐसा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक काम, जनरली ऑर्गेनोमेटालिक का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाई। ये एज ए हाइड्रोजन रेडिकल डोनर का काम करता है, हाइड्रोजन रेडिकल डोनर। वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ बिहाइंड दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है तुम्हारा AIBN। AIBN का क्या है यहाँ पे, दिस इज व्हाट AIBN, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा AIBN का, इस टू रेडिकल्स एंड N2 इज एलिमिनेटेड, ठीक है। अब वही रेडिकल मैं क्या कर रहा हूँ, दैट सेम रेडिकल is going to be react with the what your NBu3SNH, so that radical is take that hydrogen and it becomes a neutral plus, क्या मिल रहा है आपको, NBu3SN रेडिकल। अब जो NBu3SN रेडिकल है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अब रिएक्ट होगा, NBu3SN रेडिकल प्लस आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज RX, okay, and now it again it proceed via photolytical chemical reaction, or one can call the chromatic reaction। तो ये ब्रेकिंग कैसे होगा आपका, so that radical from SN is break that bond like this fashion, और ये कैसे रिएक्ट होगा आपका, ये X अपने तरफ विड्रॉ करेगा और R रेडिकल आपको फ्री मिलेगा। so that means you will get the R radical plus क्या मिल रहा है साथ में आपको, NBu3SNX, because that SN have the tendency toward halogens are great, that's why it withdraw that halogen from that molecule। अब जो R रेडिकल मिला है तुमको, ठीक है, वो R रेडिकल को हम RH कैसे कर सकते हैं, नाउ टेक द फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ NBu3SNH बिकॉज इट इज अ हाइड्रोजन रेडिकल डोनर। ये कौन है, दिस इज H रेडिकल डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेश मॉलिक्यूल लेंगे NBu3SNH एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट, सो क्या हो जाएगा, इट फॉर्म ए RH प्लस NBu3SN रेडिकल। अब क्या होता है कि जितने RX आपके पास रहेंगे वो सब ऐसे रिएक्ट हो जाएंगे, फिर ये NBu3SN जो है आपका नया RX के साथ रिएक्ट हो जाएगा, फिर नया NBu3SN आएगा, फिर प्रोटॉन रेडिकल देके चला जाएगा, फिर NBu3SN रेडिकल मिलेगा, फिर वो नए RX के साथ रिएक्ट होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक ही इक्विवेलेंट का RX लेते हैं, हम तो सोल्यूशन लेते हैं। तो जब तक हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट रहेंगे तब तक वो सबके सब जो है वो उसमें से उसको कन्वर्ट करता रहेगा किसमें, आपके हाइड्रोकार्बन। सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, and best reagent for that is this combination, okay। So these are well known reaction particularly which are the part of our heterocyclic chemistry now, but you know that heterocyclic reactions are only be done or only be carried out in the light condition or what the thermal conditions, okay। So for that you should require that some initiator like benzoyl peroxide, like AIBN, okay। These are the initiator that must be needed to initiate that reaction। फिर रिएक्शन अभी जो है ये इनिशिएशन स्टेप है, पहले वाले इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, एक रेडिकल जनरेट होता है, वो रेडिकल किसी और को जनरेट करवाता है, यानी कि इनिशिएशन में पहले 2 स्टेप आ गए, इनिशिएशन ये भी है, इनिशिएशन ये भी है, दोनों स्टेप आपके इनिशिएशन में जाते हैं। उसके बाद के जितने भी स्टेप्स रहेंगे इसको बोलते हैं अपन प्रोपोगेशन। ये आगे जितने आपके RX रहेंगे वो सब जो है वो कंटिन्यू आपके कन्वर्ट होते रहेंगे RH में। अब लास्ट में जो ये रेडिकल आपका बचा है ना, ये एक रेडिकल है, इधर एक और एक रेडिकल बचा था आपका, तो ये जब रेडिकल डायमराइज हो जाएंगे दैट विल बी द रिएक्शन विल बी कंप्लीट नाउ, दैट्स कॉल्ड द टर्मिनेशन रिएक्शन। तो ये ऐसे 3 स्टेप में जनरली चलते रहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Okay, that's fine. Okay, now that chemical is responsible for the radical abstraction reactions now। तो जो भी reaction हम इनको बोलते हैं ना, so that reaction is called as a radical abstraction reactions। That is what the removal of what halogen particularly from the molecule, और जितने भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो उससे जो जनरेट हो रहा है आपको
look at this simple reaction that Rx is going to convert into the RH with the help of the same reagent. Reagent क्या क्या use करें इसके अंदर हम? So your reagent is AIBN, then your light condition and NBu3SNH. ये हमारा रहेगा उसके अंदर. अब हेलोजन अलग अलग होते हैं, किसकी एबिलिटी किसकी तरफ होती है विड्रॉ करने की, वो हमको देखना होता है. अब इसमें मेन चीज क्या है, तुमको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ AIBN, व्हाट इज द रोल ऑफ NBu3SNH. NBu3SNH में क्या होता है, जो हाइड्रोजन और टीन का जो बॉन्ड है ना वो वीकर है, and that's why it break homolytically and that reagent is responsible for giving hydrogen radical. इसलिए Bu3SNH को हम हाइड्रोजन रेडिकल डोनर बोल सकते हैं. So we'll discuss some reactions particularly. अब हम क्या करेंगे, कुछ reactions ऐसे लेंगे जहाँ पे आप हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव करें. So we have some interesting reaction. Example ले सकते हैं आप यहाँ पे. Take this some bicyclic molecules. This one. Suppose अगर मेरे पास ये कोई compound है and this is my Br now. ठीक है? And here somewhere this nitrogen is protected by the group, example COCF3. This is a protected group now, and the responsible chemical for this reaction is first of all what, that AIBN, and you know that AIBN is organic compound in the presence of what, light, or sometime only the pHH is given. Okay, and we have to reflux it. That means it is a thermal condition reaction. pHH का मतलब क्या होता है? It is a benzene. So as a solvent उसको use किया गया वहाँ पे. So AIBN is there and benzene के प्रेजेंस में उसको रिफ्लक्स किया गया. इससे पहले लिखा था ना हमने कि आप यहाँ पे जो है ये HNO यूज कर सकते हैं या समटाइम आपको थर्मल कंडीशन दी जाएगी, तो नो डाउट. ओके, सो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. सो लुक एट दिस रिएक्शन नाउ. इन दैट रिएक्शन पर्टिकुलरली व्हाट हैपन, सो Br is there at some specific position, this Br, and that Br is going to be removed with the help of what, the radical generation process now. तो पहले रेडिकल जनरेट होगा AIBN के थ्रू वगैरह वगैरह सब प्रोसेस चलेगी, और without affecting to what other function group, we are going to remove that function group now, remove that COCF3. तो हमने क्या कर दिया, इस मॉलिक्यूल को उसमें कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब वहां से आपका वो Br चला गया और वहां पे क्या आ गया, वहां पे हाइड्रोजन आ गया. हाइड्रोजन आ गया. ओके, अगर हम Bu3SND अगर यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका रेडिकल केमिस्ट्री में कैसे जाता है. और रेडिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री बदलती नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा. एग्जाम्पल मैं दो रिएक्शन आपको बताऊंगा यहाँ पे. ये वाली, ठीक है, ये वाला मेरे पास एक कोई कंपाउंड है और इस केस में मेरे पास यहाँ पे Br प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे. और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहा हूँ केमिकल की. एग्जाम्पल फर्स्ट मेरे पास जो रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा वाला हमारा रेडिकल वाला. रेडिकल वाला क्या क्या है इसका, AIBN HNu NBu3SNH. तो देखो पहली वाली जो रिएक्शन है वो हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, H नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, एंड यू नो दैट दिस इज द हाइड्रोजन नाउ. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है और Br है, ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे है. Br is at the equatorial position and H is at the axial position. So you know that LaH gives the H negative ion. तो ये क्या है, एज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव का है, और SnBu3 जो हमने लिखा है ये H रेडिकल का सोर्स. इफ यू सी द केमिस्ट्री, अब हम क्या करेंगे, इसको इस H के जगह पे ड्यूटेरियम यूज करेंगे, बराबर है, ताकि हमको स्टीरियो केमिस्ट्री. हमने क्या किया, सिंपल चेंज किया, सिंपली H के जगह पे D लिखा, यानी कि ड्यूटेरिएटेड लिखा है उसको. अब क्या होता है कि whenever a nucleophile is going to be attacked on the cyclic system, it always open the or it always react from axial side. ये हमेशा कहाँ से रिएक्ट होता है, फ्रॉम एक्सियल, मतलब जो नीचे वाला जो पोजीशन है वहां से वो अटैक होगा, और ये रिएक्शन जाती है आपकी SN2 में. किसमें जा रही है रिएक्शन, इट गोइंग टू बी द SN2 फैशन. तो देन SN2 मींस व्हाट नाउ, सो बैक साइड का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक सिस्टम में हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्सियली रिएक्ट होता है. एक्सियली रिएक्ट होना मतलब क्या हो जाएगा, सो दैट H विल गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ Br इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड, और Br के जगह पे H चला गया और H के जगह पे आपका ड्यूटेरियम आ गया, यानी कि जो आपकी रिएक्शन है वो ऐसे हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, द SN2 रिएक्शन. बट इन द केस ऑफ रेडिकल रिएक्शंस नाउ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी कार्बन स्केलेटन. तो आपको जैसे कि वैसा ही आपको कंपाउंड मिलता है, यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे H आएगा. So this is the difference between the radical reactions and what the polar reactions. हाँ, जहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल वगैरह यूज करते हो. So आ रहा है समझ में आपके? Okay, so always remember the polar reactions are like SN2 reaction, and the radical reactions are non-polar reactions. So they are just proceed without changing any center.
So radical abstraction का जो condition है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं. So whenever whatever type of your hydrocarbons are alkyl halides are there, so that are easily going to be converted into the hydrocarbon with the help of your similar reagent, that is AIBN and HNO in combination with NBU3 SNH. We will discuss the many example from that NBU3 SNH. Okay, just I will give you some example for NBU3. Okay, so write down some examples and we have to solve all these examples, how these reactions are going to be takes place. And okay, so you know that if any molecule, if pi bond is also be present now, ऐसा आपके पास कोई कंपाउंड है और हमने सेम रीजन यूज किया, व्हाट हैपन नाउ? ओके दैट्स फाइन, x हो जाएगा, रिमूव आपका x तो निकाल रहा है आपका, पहले ही चला गया x. ओके, यहाँ what happened with that radical now, whether it going to take the proton or it will show some kind of a reactions. You know that that radical must be react with intramolecularly and it reacts with here. अब now there are two possibilities are there. One possibility is here, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके दो रेडिकल बनेंगे. तो पहला वाला एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है आपका, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है. दैट मीन्स इट फॉर्म ए टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. अब अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो आप इसको नंबर करो, समझ में आएगा. 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. नाउ देयर इज एन टू ऑप्शंस आर देयर. एक होगा ऑप्शन आपका C1 मेक द बॉन्ड विद C5 और दूसरा ऑप्शन होगा आपका C1 मेक द बॉन्ड विद C4. तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपके पास क्या क्या बचेगा? C1 जब आप बना रहे हैं तो फटाफट C1 to C5 ये बनेगा, और जब आप C1 C4 बना रहे हैं तो आपको ये मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे आप रेडिकल कहाँ पे आ रहा है देखो, जब C1 और C5 का बॉन्ड बनाया तो 4 पे रेडिकल आना चाहिए, और जब हमने C4 पे जब बॉन्ड बनाया तो 5 पे रेडिकल आपका आना चाहिए. 5 पे रेडिकल. ठीक है, और वो दोनों रेडिकल को फिर हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे किसके साथ में, हमारे प्रोटॉन डोनर के साथ, सॉरी हमारे हाइड्रोजन डोनर के साथ हम रिएक्ट करेंगे. सपोज एग्जांपल ये मेरे पास 6 मेंबर रिंग है और प्लस मेरे पास कौन सा है, ये वाला एक कंपाउंड है. तो मैं फटाफट क्या करूंगा, इनको ट्रीट करूंगा NBU3SNH के साथ. तो मुझे एक सिंपल सा एक साइक्लोपेंटेन मिल रहा है, प्लस मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. अब इसमें से मेजर कौन रहेगा फिर? 5 member ring. Yes, this will be the major. So that means instead of that, that means we are not going to stop the reaction up to the halogen removal. So that radical which is generated, that also combined within the molecule now. Okay, and that's why it show the different types of chemical reactions. तो ये सब चीजें जो है ये हमको पता होनी चाहिए कि how it going to be takes place now. So I will give the simple and very common example. So just find out the product of this reaction. Okay, this is the reaction. Now find its product and all this thing. So what we have to do now, the simple first to generate the radical where the Cl is there and then do the your reaction. So what happened here now, so your product of this reaction should be, so this is what NR, so this will be the product now, right? So 5 member ring is developed at here and you will get the product now. So that organotin compounds are very important compound for the conversion of that radicals or that halo compounds toward the hydrocarbon. Similarly, we have the second application from that organotin compound. You already heard the reaction, that is what the pyrolytic elimination. In pyrolytic elimination, we are seeing one reaction. That reaction is called as a xanthate elimination, right? Okay. So what happened in the xanthate elimination? What type of elimination is this? Yes. First of all, what happened now here, that alcohol is going to convert into the hydrocarbons. This is the one of the important transformation. So if you are an alcohol, that alcohol is converted to the hydrocarbon with the help of the same reagent. Same reagent we are going to use now here. Okay, but the mechanism is proceed via the xanthate ester elimination. Okay, and here we are going to use the reagents are AIBN, HNO and NBU3 SNH.
Now, how that alcohol are firstly going to convert into the xanthate ester now. So look at this reaction. Suppose this is my alcohol. First, I am going to react with sodium hydride. It is one of the powerful base. It will take the proton from alcohol. Your alcohol is not acidic one, but because of the stronger base, it going to lose the proton. It forms sodium alkoxide. That sodium alkoxide is going to be react with the carbon disulfide, that is CS2. Okay, that carbon disulfide means similar to that of carbon dioxide. So we can also have the structure of carbon disulfide like this one. So you know that the negative charge from the oxygen will going to react onto the carbon, and this bond will be open to oxygen. So what happened in the next step? So in the next step, this ROC, this will be a double bond O, and this will be a S. Sorry, this will be a C double bond S, and this will be a C S negative. Now that compound is going to be react with the methyl. One can call methyl iodide, and that negative charge is further going to react with the methyl. Okay, and here iodine will be free now. So that sodium which is used in the first step and that iodine in the last steps are going to be eliminated as a sodium iodide, and here your compound is ROC double bond S, and this will be called as a SME. So that whole group is called as a xanthate ester now. That whole group is called as a xanthate ester. Now this is the preparation of what xanthate ester. ये क्या हो गया आपका? Now take that xanthate ester, this molecule, and is going to be react with the your particular reagent, that is AIBN, HNU and etc etc. ठीक है, अब हम इसको जो है क्या करेंगे, आगे ट्रीट करेंगे. तो वेरी सिंपल रिएक्शन इज दिस. So take that your molecule, this is RO double bond S, this is SR example, is going to be react with first the AIBN HNU. क्या करता है ये? So it going to make a radical. It going to form a radical particularly, और radical बनने के बाद क्या होता है आपका, हम यूज कर रहे हैं इसमें NBU3SNH. So it simply developed that R and H, रिमेनिंग सारा जो मॉलिक्यूल है वो सबका सब चला. सो अब xanthate एलिमिनेशन इसको नहीं बोलते हैं, इसको xanthate रिमूवल बोलते हैं. और xanthate एलिमिनेशन अगर हमने पढ़ा था तो वो क्या था हमारा, तो xanthate एलिमिनेशन आर नथिंग बट दैट विल गोइंग टू कन्वर्ट अल्कोहल टू ओलेफिन. सो ये है xanthate एलिमिनेशन. इसमें सब डालना पड़ेगा आपको. क्या क्या डालना पड़ेगा इसमें? एग्जाम्पल इसमें आपका क्या आएगा, सोडियम हाइड्राइड, देन कार्बन डाइसल्फाइड, देन मिथिल आयोडाइड, और फिर इसको हीट करना पड़ेगा, इसलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं. सो दिस रिएक्शन इज बिलोंग टू द पायरोलाइटिक एलिमिनेशन. और जो नीचे की जो रिएक्शन है वो रेडिकल जनरेशन वाली रिएक्शन, राइट. अब यहाँ पे दो अलग अलग आप ये भी ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द थायोस्टर. थायोस्टर मतलब थायोकार्बोनिल वाला जो कंपाउंड होता है वो वाला. सो ROC double bond S and R. You can take this also, do the same reaction, that will give the product with this one. वही हमको यूज करना है. ये वाला, और इसको आप आगे लेके जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं. So take the some example and we'll see the some interesting example ना. Now we have to find out. Okay, अब आपको मैं ज्यादा तो कुछ नहीं दूंगा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है, और मैं कुछ बताने भी नहीं वाला हूँ. ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, इस रिएक्शन में ढेर सारे फंक्शन को प्रेजेंट है, बट हमारी रिएक्शन किसी एक जगह पर ही होगी. ठीक है, एक मेरा ये वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे. देखो इतना इतना सारा ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया, और सबसे पहले जो मैं रिएजेंट इस पे लिखना चाहूंगा वो रहेगा मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, सोडियम हाइड्राइड in the presence of carbon disulfide, and we have to react with the methyl iodide. तो ये मेरा रहेगा पहला, और फिर मैं इसके ऊपर रिएक्ट करूंगा कोई और एक, ये वाला, और जहां पे लिखा रहेगा तुमको Bu3SNH, या पहले AIBN ले लो, PHME as a solvent. The reaction temperature is 110 degrees Celsius, and NBU3SNH. Now what is your expected product for this reaction?
So this reaction is again very simple now. If you see this reaction very carefully, you will observe, you will find that your answer. So when alcohol is going to be react with sodium hydride, so there is a formation of what, the salt, that is called a sodium alkoxide. Then that alkoxide is going to be react with CS2 now. It will form a this type of what, anion, and finally that will react with methyl iodide. You get the xanthate ester. Okay, and up to that, in the first step, we are not mentioned that heat and etc. etc. The first step is what, sodium hydride is given. Sodium hydride is take the proton from this one, because in whole molecule there is a one OH group is there, so the NH will take the acidic proton. So acidic proton is only at the OH, so it will take the proton. It form a negative charge. That negative charge is going to be react with carbon of CS2. Okay, it form an anion and then further react with methyl iodide. So the very simple, you will get the xanthate ester in the first step. This is oxygen without affecting to what any center or any part of what that your molecule. This one, और ये क्या है, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दो आपको, उससे करना क्या है. This is SiMe2 tertiary butoxide, tertiary butyl group. And look at this one. Now, this will be the same as it is given. So this is oxygen, this is carbon, this is double bond S, and this is what, SMe. तो ये बना है मेरे पास. हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को अगर मैं हीट करता हूँ, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता हूँ, इफ आई हीट इट दिस मॉलिक्यूल, अगर मुझे हीट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, xanthate एलिमिनेशन कर दूंगा और मैं इस कंपाउंड का बना दूंगा ओलेफिन. तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये मेरा ओलेफिन बनेगा यहाँ पे, और ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बदल जाएगी, SiMe2TBO. ठीक है, और ये वाला जैसे था वैसे, दिस इज OCO एंड दिस. तो ये जो ऊपर का जो निकाला ना, इसको बोलते हैं xanthate एलिमिनेशन. दिस इज कॉल्ड योर एलिमिनेशन. लेकिन नीचे का एलिमिनेशन नहीं है ना, जो आपको दिया है वो क्या है, वो रेडिकल जनरेट करना है, जो अभी Yes, हमने sir. देखा ना, ये वाला मैकेनिज्म Yes, है, ये कैसे रेडिकल yes, को sir. निकालता है. ओके, सो नाउ दिस रिएक्शन इज अ रेडिकल जनरेशन, यानी कि हम यहाँ से ये वाला जो है ये रेडिकल को ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट द सिंपल हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोडक्ट. तो अभी नीचे का कार्बन जो है आपका वो बदलेगा नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी वैसे के वैसे रहेगी. दिस वन, दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, दिखता बहुत बड़ा है लेकिन हो कहाँ पे रहा है, सिर्फ एक जगह पे हो रहा है. ओके. Yes, sir. So, and in many cases, what happened now, there is a decarboxylation process is occurred now. So decarboxylation, look at this one. This is a bulkier molecule now. या बहुत बड़ा, इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन ग्रुप यहाँ पे दिए गए. बट ये फंक्शन ग्रुप से हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है. हमको जहाँ पे ईस्टर दिखता है ना, वो वाला ग्रुप निकाल के फेंक देना है बाहर. So basically what that reactions are going to be called as a decarboxylation reaction. Look at this molecule now. ये molecule आपको दिया है और यहाँ पे कहीं तो भी मैंने एक ईस्टर ग्रुप लगा दिया. So this is going to be called as a ईस्टर ग्रुप now. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस मॉलिक्यूल पे मुझे सारे रीजन अपने अप्लाई करने हैं जो हमने लिए हैं. सो एग्जांपल AIBN. ओके, देन वी हैव व्हाट HNO एज अ कंडीशन, NBU3SNH. ये वाला हो गया. अब करना क्या होता है आपको कि ये वाले मॉलिक्यूल में जो एसिटेट ग्रुप है वो जनरली ब्रेक जल्दी हो जाता है, और एसिटेट ग्रुप ब्रेक होना इसका मतलब क्या हो गया, इट विल बी ब्रेक लाइक दिस मच, सो दैट N विल बी गोइंग टू बी कन्वर्ट्स. ठीक है, N भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा उधर, और आप RCOO ग्रुप को जो है वो R रेडिकल और CO2 में कन्वर्ट करवा सकते हैं. इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसमें, R radical and CO. है ना, मतलब CO2 चला गया. दैट मींस दैट रिएक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ बार्टन. बार्टन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन हाइड्रोकार्बन में करते हैं. व्हाट इज बार्टन रिएक्शन नाउ, बार्टन रिएक्शन इज अ reaction where the carboxylic acid is going to be converted into the hydrocarbon and where the loss of CO2 is going to be takes place. तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा आपका. So यहाँ पे भी हम सेम रिएक्शन कर सकते हैं. यहाँ पे भी we can remove that RCOO group, okay, and remaining things are what the same. तो उस तरह से भी हम इसमें कर सकते हैं. बट इसमें एडिशन क्या किया है कि हमने इस मॉलिक्यूल के साथ अल्काइल रेडिकल यूज किए हैं एज ए डोनर. अब अल्काइल रेडिकल अगर है तो वो क्या करेंगे आपके, सो दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट विद द कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, यानी कि दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दैट बॉन्ड विल गोइंग टू बी ट्रीट विद द अल्काइल रेडिकल. लुक एट दिस रिएक्शन. तो यहाँ पे मेरा S आ गया, ये नया रेडिकल बन गया, और ये SR हो गया आपका, दिस वन, और ये मेरा जैसे कि वैसा OCOR. अब वो जो रेडिकल है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, सो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक फोटोलिटिकली एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट रेडिकल्स. कौन कौन से रेडिकल्स मिलेंगे अभी,
यहाँ पे दिस इज n, एक तो रेडिकल पहले से था हमारा इधर, दूसरा रेडिकल n पे बन गया, और ये है मेरा SR, ठीक है। और इस कंपाउंड का क्या हो गया आपका, ठीक है, RCO रेडिकल, दैट विल बी अंडरगो द क्लीवेज लाइक दिस फैशन, सो आपको एक R रेडिकल प्लस CO2 मिल जाएगा बाहर, ठीक है, ये हो गया। और इस कंपाउंड का हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कंपाउंड इन विच टू रेडिकल्स आर डाइमराइज्ड, दिस वन एंड दिस वन, सो इन एडिशन टू दैट यू विल गेट दिस कंपाउंड। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कहीं सोर्स तो आपको नहीं दिया है, एंड दिस कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी कन्वर्ट टू द कार्बन SR नाउ, okay, so this reaction is an example of Barton oxidation, okay, आज हम ग्रुप पे so डालेंगे। look at this reaction now, suppose I have the triple bond now, I have that the triple bond, मैं ये बताऊंगा तो नहीं आपको ये, but look at this one now, so whenever that mercury is there now in a compound, suppose अगर मेरे पास RH दिया हुआ है और मुझे इस RH का कन्वर्शन RH में करना है, बट वे अलग यूज करना है मुझे, सपोज आई कैन यूज द मर्क्यूरी फर्स्ट, मर्क्यूरी मैंने यूज करके क्या कर लिया, मर्क्यूरी इज गोइंग टू बी इंसर्ट जस्ट लाइक योर ग्रिनार्ड रिएजेंट, it will insert into the carbon halogen bond and it will form a RHGX. Now that Hg is greater affinity toward sodium borohydride, so NaBH4 is the reagent, ये हम reagents में पढ़ने वाले हैं, that is reducing agent है ये NaBH4, जो H radical H anion देने का काम करता है, so that NaBH4 is going to be react with the RHGX and it form a complex, with your compound that is RHG and H, ठीक है, मतलब आपका X वहां से चला गया, and that RHGX RHGH is going to be convert into the R radical, or that R radical will going to take the proton and it form a hydrocarbon, it going to take the H radical particularly. तो ये ऐसे रिएक्शन आपकी होती है कि वी कैन प्रिपेयर दैट ऑर्गेनो, वी कैन प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरेशन प्रोसेस। और कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो रिलेटेड टू ऐसे ही कुछ तो भी था मर्क्यूरेशन से रिलेटेड, तो आप उसको देख के आप कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। यस उसके बाद हमने हमने देखा है कि साइक्लाइजेशन भी होता है, देयर इज अ साइक्लाइजेशन इज ऑकर्ड, एग्जांपल हमने लिया है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में हैलोजन प्रेजेंट है और हैलोजन के साथ साथ अगर अनसैचुरेशन अगर प्रेजेंट है वहां पे, सो दैट रेडिकल इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद द अनसैचुरेशन फर्स्ट, तो ये रेडिकल बनेगा एंड दैट रेडिकल इज फर्दर कंबाइन विद द योर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो आपको ऐसे भी मिल सकते हैं और एक तो फिर आपको ये हमने अभी एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, या फिर आप इसको ऐसे भी इसको बना सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम इसको कुछ नोटेशन देंगे कि एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, और मैं इसको कुछ ग्रुप्स के नाम देता हूँ, सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज माई एक्स, एक वाई लगाया मैंने और एक्स लगाया। अब ये हाइड्रोजन और वाई की पोजीशन अगर ये 5 C5 रिलेशनशिप आता है इनका, सो दैट विल बी द मोर प्रोबेबल रिएक्शन, मतलब जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है और जिस पे आपका वाई लगा हुआ है उनका रिलेशन अगर C5 रहेगा, लुक एट दिस इज 1 2 3 4 and 5, so that will be the reaction will be going to be very fast now because 5 member rings are formation is quite more faster than what the other rings, okay। और ऐसे हमको एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है HLF, the reaction is called as a HLF reaction। अब HLF reaction का नाम क्या होता है, we will first see the name of the compound, the name of the reaction, इसको बोलते हैं हॉफमन लॉफलर, हॉफमन, आगे है इसका लॉफलर फ्रेटिग, FREYTAG, and the short form of this reaction is a HLF reaction। तो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस रिएक्शन में हम साइक्लिक अमाइन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग साइक्लिक सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। तो कहाँ पे यूज करते हैं इसको, फॉर सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक अमाइन, जैसे निकोटीन जो है ये इसी मेथड से बना सकते हैं साइक्लिक अमाइन, ठीक है, वाया रेडिकल फॉर्मेशन, ओके। अब ये हम पूरे आज जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सब किसके हैं, वाया रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट। तो अब इसमें जो मेन चीज रहेगी हमारी वो क्या रहेगी आपकी, वो बेसिकली दैट इज अ रेडिकल, रेडिकल इज इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है यहाँ पे, बहुत आसान सी चीज है, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको मॉलिक्यूल निकाल के दूंगा, उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड हियर Y इज माय हेटेरो एटम, Y कौन है यहाँ पे आपका, Y इज ए हेटेरो एटम, ओके, और X जो है वो आपका हेलो ग्रुप लगा हुआ, हेलोजन वहां पे लगा, मतलब इसमें 3 अलग अलग चीजें आ गई, Y भी आ गया और X भी आ गया।
Y कौन होता है? Y इज नॉर्मली आइदर नाइट्रोजन ले सकते हैं या तो फिर आप ऑक्सीजन ले सकते हो Y की जगह, ठीक है? तो वेरी सिंपल। सो HLF रिएक्शन में पहले क्या होता है कि इफ देयर इज एन relationship between Y with the hydrogen it's C5 or C6 now or C4 now, then there is a formation of 5 and 4 member rings now। अगर इनका रिलेशनशिप कैसे रहेगा उसके हिसाब से अपन उसको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वी विल डिस्कस हाउ, देखो इस रिएक्शन का जो मैं फाइनल प्रोडक्ट है वो लिख के आपको बताऊंगा कि ये कैसे जाता है। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी प्रोसीड वाया लाइक दिस फैशन। यहाँ पे क्या हुआ है, कोई मुझे बता सकता है क्या? दिस इज माई Y, दिस इज माई H एंड दिस इज माई X। क्या हुआ है यहाँ पे? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गया। तो पहले क्या होता है, लुक एट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक्स इज एलिमिनेटेड। तो जैसे एक्स आपका एलिमिनेट हो गया, क्या हो जाएगा आपका? यू विल गेट द वाई रेडिकल, और एच तो वैसे के वैसा ही था, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, योर एक्स रेडिकल इज एलिमिनेटेड। क्या निकल गया? एक्स रेडिकल निकल गया। अब क्या होता है, जो इंटरनली वाई रेडिकल आपके पास दिख रहा है वो क्या करेगा, जो आपका हाइड्रोजन उधर दिया है, कौन से वाला हाइड्रोजन, जो आपको उधर हाइड्रोजन उधर दिया गया है, so that hydrogen will going to Abstracted. internal abstracted by that particular आपका जो भी दिया है आपको उससे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, पहले Y पे रेडिकल था, मतलब हेटेरोएटम पे रेडिकल था, अभी आपका किस पे आ गया, वो आ गया कार्बन पे। किस पे आ गया? Carbon पे. कार्बन। अब नाउ दैट कार्बन रेडिकल विल गोइंग टू टेक बैक टू दैट एक्स रेडिकल। जो पहले एक्स रेडिकल कहीं तो भी था आपका, वो रेडिकल अभी कौन लेगा आपका, वो कार्बन रेडिकल ले लेगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट नाउ। Okay, so such a type of a reaction is called as a, but in that reaction we are not prepared any kind of a क्या किया हमने वहां पे नहीं बनाया। अब क्या होता है लास्ट स्टेप में, देखो ये रिएक्शन आगे जानी है आपको और आगे लेके जाना है, और यहाँ पे बनाना है Y, और ये रहा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। कैसे बना होगा? देन रिमूवल ऑफ एक्स एच, रिमूवल ऑफ एक्स एच एक्स, बन गया आपका रिंग। और Y को यहाँ पे हम Y को कंसिडर कर सकते हैं या तो Y नाइट्रोजन या तो फिर ऑक्सीजन। अब हमको इससे कुछ मेन एग्जांपल देखने हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको क्या करना है। सो जनरली अब हमने, हमारे पास जो अमाइंस है वो कौन कौन से है, एक तो 5 मेंबर रिंग वाला अमाइन है हमारे पास ये वाला, और 6 मेंबर रिंग वाला जो अमाइन है वो ये वाला। तो 5 मेंबर रिंग वाला कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड पायरोलिडिन, और 6 मेंबर वाला कौन सा हो गया आपका, पाइपरिडिन। आपने निकोटिन भी बनाना है इसमें। निकोटिन मींस व्हाट, यू कैन लुक एट दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, इट हैव द पायरिडीन एंड पायरोलिडिन न्यूक्लियस, ऐसा कुछ है वो कंपाउंड का नाम। यू कैन प्रिपेयर दिस वन। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, इसके आगे जाना है। इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ अ HLF रिएक्शन, एंड देयर आर वेरियस नेम रिएक्शंस आर देयर इन फ्री रेडिकल आल्सो, ठीक है। ओके, नाउ लुकिंग बैक टू द व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ अ HLF रिएक्शन। सो सपोज आई हैव द कंपाउंड इज n हेलो कंटेनिंग कंपाउंड हमको चाहिए। अब सपोज अगर आपके पास n हेलो कंपाउंड नहीं है, दिस इज x एंड दिस इज माय r नाउ, तो ये वाला कौन सा कंपाउंड है? HLF रिएक्शन में हम क्या करते हैं, n हेलो कंटेनिंग कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी react in the presence of stronger acid and base that will form a cyclic amine। तो मेन चीज क्या है आपकी, n क्या होना जरूरी है आपके पास, n हेलो कंपाउंड, ठीक है। ये मेन आपका रिएक्टेंट है, बराबर है। तो n हेलो कंपाउंड से Yes. क्या हो जाएगा, n हेलो कंपाउंड जो है वो आसानी से आपका ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज माय प्रोडक्ट ना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हो गया आपका प्रोडक्ट। बट मेन चीज है आपके पास अगर n हेलो नहीं रहेगा तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर इट। तो वो कैसे बनाया जाता है, सो हाउ दिस n हेलो इज प्रोड्यूस नाउ। n हेलो नहीं रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन जाएगी नहीं आगे। तो n हेलो अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, n हेलो बनाने के लिए हमारे पास कुछ जैसे अमाइन अगर है हमारे पास, सपोज आई हैव दैट अमाइन, पहले तो अमाइन ही रहेगा ना। अमाइन से मैं n हेलो कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ रिएजेंट है। एग्जांपल है मेरे पास, अगर मुझे क्लोरीन लगाना है तो आई विल यूज NCS, n क्लोरोसक्सिनामाइड। इफ आई वांट टू प्रिपेयर ब्रोमीन देन आई विल यूज NBS, n ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर हमको आयोडीन चाहिए तो आई विल यूज द NIS। तो ये क्या है आपके हेलोजेनेटिक एजेंट है, जो क्या करते हैं, हेलोजन देते हैं। समटाइम SOCl2 आप ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो समटाइम, बट दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द। अब NCS का मतलब क्या होता है, सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड मतलब C डबल बॉन्ड O, दिस इज, लुक एट दिस, यहाँ पे X लगा दो। अब वो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन टेक क्लोरीन, यू कैन टेक ब्रोमीन, यू कैन टेक आयोडीन। हो गया आपका कंपाउंड NCS NBS NIS। तो ये वाले लेते हैं अपन, अमाइंस पे डालते हैं तो अमाइन n हेलो बनाता है, और n हेलो कंपाउंड का कन्वर्शन वो क्या करता है फिर अमाइन में करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H एंड H+। ऐसे वो रिएक्शन, यहाँ पे आप H की जगह पे ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आपको HX निकालना है, तो यू शुड रिक्वायर द बेस नाउ। तो तीसरी स्टेप आपकी बेस वाली रहेगी, राइट, अंडरस्टूड। चीज क्या है आपकी, वी हैव टू नो द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन। देखो कहाँ से लेंगे अपन पोजीशन, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन जरूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन जो है आपको C5 पे हाइड्रोजन इज नेसेसरी,
वहां पे नहीं रहेगा तो रिएक्शन आपकी होगी क्या, नहीं होगी वहां पे, ठीक है। चलिए विल टेक द एग्जांपल एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं तो इसका आंसर क्या रहेगा। आप तो वो इसको टाइम कैसे, मेथड इसको क्या करना पड़ेगा पहले, सो वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर सीएल निकालना द n radical रेडिकल and this is r now. It will going to take that hydrogen from C5 position, then you get the carbon radical and here n becomes a amine, this one. Then further step is what, that radical, carbon radical will capture that halogen and will form a this compound, and finally this compound is undergo the treatment with the base, will remove the HX, this one. तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। फिर आप बोलोगे इसमें रोल ऑफ एसिड क्या है, ये कहाँ से क्यों लिया हमने, तो विल शो द रोल ऑफ व्हाट एसिड नाउ, व्हाई वी आर यूजिंग गोइंग टू टेक दिस एसिड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए तो मैं एक मॉलिक्यूल निकालता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आएगा कि हमने इसमें जो है एसिड क्यों लिया है। ये एन हेलो कंपाउंड है, H प्लस कहाँ जाएगा, जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ पे है, अभी ये ट्राईवैलेंट है ना, अभी भी लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट। तो पहले मैं क्या करूंगा, विल टेक दैट एसिड दैट इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जैसे मैं लेता हूँ, सो हियर एन, पहले से मेरे पास क्या लगा हुआ है, Cl है सपोज एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल माय Cl इज देयर नाउ, ठीक है। और साथ में मेरे पास एक क्या आ गया अभी उधर, एक प्रोटॉन भी है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले आई विल रिमूव दैट Cl होमोलिटिकली, सो आई विल गेट द रेडिकल फर्स्ट, रेडिकल मिल गया मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेडिकल के साथ एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है मेरे पास, और यहाँ पे कौन है, आर भी प्रेजेंट। सो दैट लोन पेयर विल टेक द प्रोटॉन नाउ, जो प्रोटॉन हमने यहाँ पे यूज किया है, सो दैट प्रोटॉन इज नथिंग बट व्हाट, एच, ऐसा है, ठीक है। तो अभी आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया। अब क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, या ये जो रेडिकल है, पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको ये भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, तो इसको आप क्या बनाओगे, इट विल डेवलप द NH2R, ठीक है। अभी नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बना हमारा कार्बन रेडिकल। फिर दैट कार्बन रेडिकल इज गोइंग टू टेक द Cl रेडिकल, Cl रेडिकल मीन्स NH2R, और ये आ गया मेरा Cl, ये हो गया प्लस। फिर मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो HCl आपका जा रहा है, फिर वो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बन रहा है। तो एसिड भी आपका इनिशिएट करता है रिएक्शन को, और रेडिकल जनरेट करना है आपको Cl निकाल के, एंड देन विल फॉर्म ए प्रोडक्ट, ओके। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसके, या फिर आपने पहले प्रोटोनेशन कर दिया तो आपके नाइट्रोजन पे कितने हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। पहले कौन था आपका नाइट्रोजन पे, एक Cl था और एक सीएल R था, ओके। और मैंने क्या किया, फिर से H प्लस एसिड यूज किया, तो अभी आपके 3 लोग बन जाएंगे उसके ऊपर। कौन कौन हो जाएगा 3 इसके ऊपर, एक H आ गया, आर एक R आ गया आर और एक Cl आ गया, एक सीएल ठीक है। अब इस पे नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव अब मैं चार्ज क्या, अब मैं कर रहा हूँ होमोलिसिस, तो होमोलिसिस करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा Cl को लेके, ठीक है। चलिए क्या बनेगा ये, तो ये रेडिकल बनेगा नाइट्रोजन रेडिकल नाइट्रोजन रेडिकल विथ H विथ R, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी वैसे के वैसे रहेगा ना, वो थोड़ी जाएगा। अब क्या करना है मुझे, जो बाजू का जो रेडिकल है H, H, ठीक है। तो फिर अभी वो रेडिकल जो है वो दूसरे को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस वजह से इसके ऊपर अभी आ गए 2 हाइड्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, और एक रहा हमारा R, अभी आ गया रेडिकल यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बन गया NH2R ना। फिर दैट रेडिकल इज गोइंग टू टेक दी Cl रेडिकल आयन, तो Cl रेडिकल जब ले लेगा तो बेसिकली इट विल फॉर्म NH2 प्लस, एंड दिस इज R एंड हियर विल बी द Cl, ओके। तो ऐसा इंटरमीडिएट आपका बन रहा है। फिर आप पहले इसमें से HCl निकाल रहे हो, फर्स्ट व्हाट वी रिमूव द HCl नाउ, इट विल फॉर्म ए रिंग, तो रिंग बन रही है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो है वो H दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ऐसा रहेगा आपका। और हमने जो एसिड यूज किया था ना उसका नेगेटिव, जैसे H2SO4 यूज किया है, तो HSO4 इज रिमेन नाउ, एंड दैट HSO4 नेगेटिव आयन, सो सपोज एग्जांपल मैं H2SO4 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, H2SO4, तो H2SO4 का क्या बन रहा है, HSO4 नेगेटिव आयन, और H प्लस तो उसने यूज कर लिया ये वाला। तो अब HSO4 आयन मैं जो है वो यूज करूंगा, और ये मुझे न्यूट्रल प्रोडक्ट देगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये ऐसे इसका मैकेनिज्म है पूरा, ओके। इसको अगर आपने नहीं भी किया तो चलेगा।
ओके, मैं इसके दो कंपाउंड बनाऊंगा। पहले तो क्या हो जाएगा कि वो आपका एक्स निकलेगा, फिर रेडिकल बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, या पहली रिएक्शन बता रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, जनरली C5 वाला हाइड्रोजन हम ज्यादा जनरली कंसिडर करते हैं। कौन सा वाला? C5 वाला, ये यहाँ पे जो कंसिडर किया, दिस वन। और जो N-ब्यूटाइल की जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें आप ये लगा सकते हैं। कौन से वाला? ये वाला। तो पहले आप क्या करोगे, इसमें से पहले आप इसमें से एक्स रेडिकल निकालोगे, और जो रेडिकल आपका बन गया उसको आप कंबाइन करोगे साथ में। तो अभी आपके पास नाइट्रोजन से काउंट करो, आप नाइट्रोजन से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो C5 बॉन्ड विल बी द मोस्ट स्टेबल, यानी कि आप जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो दिस इज N, ठीक है, उस पे H आ गया मेरा, और N के साथ पांचवा बॉन्ड ये लगा है, और 5 एक साथ मिथिल। ऐसे उसको क्या करेंगे, एक ही Br करेंगे। एक मिथाइल आ दिया। Sure. Okay. And that molecule is one of the natural product, okay, and that's called the coenzyme. CONECEINE. Okay, this is a delta coenzyme, and in that case what nicotine is synthesized from this molecule. This is what nitrogen. So this is what nicotine. Nicotine. So these are the two important application of what HLF reaction. चलिए और एक रिएक्शन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना है आपको। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप किसको यूज करोगे। So which bond will be preferentially we have to break now, whether CH or whether CD now, because if you number it 1 2 3 4 and 5 बराबर है, मतलब C5 वाला लेना ना आपको। और क्या होता है कि CH इज वीकर कंपेयर टू व्हाट CD। तो हम सब फटाफट क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे, तो आप दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो 5 मेंबर रिंग तो बनेगा ही आपको यहाँ पे। दिस इज व्हाट द नाइट्रोजन, एंड दिस इज आल्सो व्हाट द नाइट्रोजन। ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या हमने लिया है वो आपका मैटर करेगा। दिस इज व्हाट इन फर्स्ट H एंड दिस इज व्हाट D नाउ। ये तो तुम्हारा, ये कौन है, मिथाइल है ना, इस पे भी लगा हुआ मिथाइल इधर। सो और ये भी मिथाइल है। तो इसमें जो रेशियो है ना, वो इस कंपाउंड का रेशियो जो है वो 78% आपको ये मिलता है, और 22% जो आपको ये मिलता है। दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड इजीली देन व्हाट द ड्यूटेरियम। टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। सो दिस इज व्हाट NCl, 1 2 3 4 and this is 5. Now take this example, and in the same reagent is given H2SO4 and what, heat। चलिए अब इसमें दो ऑप्शन आपके पास, आप किस साइड वाला जो है वो यूज करोगे उस पर डिपेंड है, किस साइड वाला यूज करोगे। सपोज मैं इसको 1 देता हूँ, 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर से नंबर दूंगा तो 2 3 4 5 और 6। तो इधर 6 इस वाले रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो ऐसे लिखेंगे इसको। सो दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप। अब ये मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और ये जो पूरा ग्रुप है 1 2 3 4, कितने, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, 2 2 4 2 6 और 3 9, यानी कि ये जो है ये क्या रहेगा आपका C4H9। तो ये ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। ओके, एंड लास्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल, फ्रॉम स्टीरॉयड केमिस्ट्री। स्टीरॉयड मतलब वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें टेट्रासाइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। टेट्रासाइक्लिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि जिसमें तीन जो है वो 6 मेंबर रिंग रहेंगे और एक जो रहेगी वो 5 मेंबर रिंग रहेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ये मिथाइल ग्रुप रह गया, ये हाइड्रोजन है सपोज एग्जांपल, एंड दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप आल्सो। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर वाला अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं वापस निकालता हूँ। चलिए, तो ये कुछ आपका ऐसा पूरा कंपाउंड है। अब आपको क्या करना है, इसमें सेम रीजन हमको यूज करना है, वही H2SO4 HNO NaOH। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रिंग बननी है वो भी बननी चाहिए हमको 5 मेंबर रिंग, और कौन सा मिथाइल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, जो जिसको अपन ये वाला एक दिया हुआ है, और यहाँ पर भी, और सेम सेम साइड से बनना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि हम जनरली प्रीफर जो है वो सबसे ऊपर वाला जो दिखता है ना मिथाइल ग्रुप, वो हम प्रीफर करते हैं, एंड दैट विल फॉर्म ए प्रोडक्ट। सो रिमेनिंग थिंग्स आर व्हाट द सिमिलर। तो ये जैसे कि वैसा रहेगा तुम्हारा, ये बदलेगा नहीं। दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये रहेगा नाइट्रोजन, और ये रहेगा मिथाइल ग्रुप। बाकी जैसे कि वैसा कुछ भी चेंज नहीं करना है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। टेक लास्ट एग्जांपल। ओके, ऐसा मॉलिक्यूल है, और अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हमको तो पहले हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो कुछ रिएजेंट हमारे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट रेडिकल फॉर्म करते हैं। टेक दैट I2 एंड पीएच, इट इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, PHIOAC twice. This is a source of iodine, and in the presence of hot light, okay, in the presence of light, 25 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। तो पहले क्या हो जाएगा आपका H के जगह पे, यहाँ पे जो दिखता है ना आपको ये, सो आयोडीनेशन हो जाएगा, एंड देन दिस कार्बन will be responsible for giving hydrogen, so that's why you get the cyclic type of आपको मिलेगा कंपाउंड, यानी कि एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और एक बनेगी 5 मेंबर रिंग। दिस विल बी माय डबल बॉन्ड, एंड हियर विल बी माय नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। सो अभी आपके पास और रिएक्शन बाकी है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल बाकी है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस अभी बाकी है, तो अपन इसको नेक्स्ट कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक रहेगा तुम्हारा बार्टन ऑक्सीडेशन, बार्टन ऑक्सीडेशन ये पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके फ्री रेडिकल के रिलेटेड। और फिर इसमें कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जैसे एडिशन रिएक्शन वगैरह होती है वो। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूवल के भी कुछ वापस रिएक्शन हम पढ़ेंगे। देन वी हैव सम मोर रिएक्शंस फ्रॉम द रेडिकल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल नॉरिश टाइप है आपके पास, वो भी हमको देखनी है, नॉरिश क्या होता है, नॉरिश टाइप 1, नॉरिश टाइप 2।